Welcome back, my dear students of grade 9. In the last videos, we have studied about the natural vegetation and different types of vegetation that are found in our India. In this video, we will study about the wildlife, natural wildlife, what is its importance. Like flora, India is also rich in fauna. Fauna means different species of animals. It has approximately 90,000 animal species in our India. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 30% of the world's total वर्ल्ड लाइफ. जितने वर्ड्स पूरे वर्ल्ड में है उसकी 13% इंडिया में मिलता है. And there are 2,546 species of fishes which account for 12% of the world stock. It also shares between 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. अलग अलग तरह के जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, उसका 5 से 8% हमारे इंडिया में है. Clear that? Now we will study the different types of animals which are very important and which found in which area. The first, elephant are the most majestic animal among the mammals. They are found in the forest of Assam, Karnataka and Kerala. One non-rhinoceros are the other animal which is found in the swampy and the marshy area, lands of Assam and वेस्ट बंगाल. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में, और वहीं पर हमें वन और राइनो मिलते हैं. इन द एरिड एरियाज रन ऑफ कश एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एज कैमल्स. वहाँ हमें कैमल्स मिलते हैं. इंडियन बाइसोन, नीलगाय, चौसिनगाय आर जो 4 ऑन एंटीलोप होता है, गैजल, different species of deer, some other mammals are found in India. It also have several species of monkeys. इसके अलावा अलग अलग species monkeys की भी मिलती है हमारे इंडिया में. India is the only country in the world that has both tigers and lion. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमें टाइगर्स भी मिलते हैं और लायंस भी हैं. The natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh, the Sundarban of West Bengal and the Himalaya region. वहाँ पर हमें टाइगर्स ज़्यादा मिलते हैं. इसके अलावा leopards are the members of cat family. They are important among the animals of prey. The Himalayas harbor a hardy range of the animals which survive in the extreme cold. हिमालयाज़ में कौन से एनिमल्स मिलते हैं जो उस एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड होता है, तो जो वहाँ के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उस तरह के एनिमल्स होते हैं. तो उनकी जो फिज़िकल कंडीशंस होती है स्किन उसके अकॉर्डिंग ही होती है टू टॉलरेट द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. लद्दाख, the freezing high altitude area, home of yak, shaggy-horned wild dogs weighing around the 1 ton, the Tibetan antelope, the barai, wild sheep, kiang. These are the main animals that found in the cold areas. The ibex, bear, snow leopard, rare red panda are found in these certain pockets. In the river, lakes, coastal areas, turtle, crocodiles and gorillas are found. और जो भी एनिमल्स जिस एरिया में भी पाए जाते हैं, they are adapt themselves according to these climatic condition. उन क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. अगर डेजर्ट एरिया में है तो उनके एनिमल्स की स्किन भी वैसी ही होगी टू टॉलरेट द हॉट टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. अगर कोल्ड एरिया में है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको हार्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी जो नेचुरल फीचर्स हैं वैसे ही होंगे टू टॉलरेट द
cold temperature of that areas. Bird life in India is very colorful. Peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the countries. Now, biodiversity. Biodiversity means different species of plants and animals that found in India. And each and every animal is very important for us. For example, the animals. The large stock of provided by the nature of the milch animal. कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे काव है, बुफेलोज. They are very important for us. They also provided us drought power, transportation, meat and eggs. And fish provide nutritive food. Fish हमारे लिए भी ज़रूरी है. They also provide us nutritious food. And many insects help in the pollination of the crops and fruit trees. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पोलिनेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं. अगर हम उनको ख़त्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है. जो हमारा एनवायरनमेंट है, बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. एवरी स्पीसीज हैज़ ए रोल प्ले इन द इकोसिस्टम. तो हमारे इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज है, छोटे से छोटा जो इंसेक्ट भी है, जो बड़े से बड़ा एनिमल है. एवरी वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. हर एक का अपना अपना रोल प्ले करता है. तो हमें सबकी कंजर्वेशन करनी ज़रूरी होती है. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of the plants and animals, resources of by human beings, the ecosystem has been disturbed. Human being हम लोग क्या करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स को अपने लिए यूज़ करते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. Many species are in endangered and 20 species are extinct. बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जो endangered means खतरे में है. अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. एक्सटिंक्ट मीन्स विच आर नो मोर ऑन द अर्थ. अब अर्थ पे हमें दिखाई नहीं देते हैं, लुप्त हो चुके हैं. Quite a few animal species are endangered and some have the become extinct. द मेन कोजेज़, और इसके लिए मेन कोजेज़ क्या है? मेन है कि हम अपनी ग्रीडीनेस, ह्यूमन अपनी नीड्स को, अपने लालच को पूरा करने के लिए इनको एक्सप्लॉइट करता है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है. फॉर एग्जांपल, हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर द कमर्शियल पर्पस. पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो आपकी इंडस्ट्रीज में से केमिकल्स निकलते हैं, वेस्ट निकलता है, उससे पोल्यूशन होता है. They also destroy the animals and the birds. Acid deposit, introduction of the alien species, and reckless cutting of the forest to bring a land under the cultivation and habitation. हम forest को भी अंधाधुंध काटते रहते हैं. क्यों? For the purpose of cultivation and for habitation, घर बनाने के लिए. These factors are responsible for the imbalancing the environment. तो इस environment को protect करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग steps उठाए हैं, because that is very essential for our survival. हमारे survival के लिए, ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करते रहने के लिए जो भी नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ जो भी हमें मिली हुई है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं? फर्स्ट वन इज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्योना. बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं किसके लिए? यहाँ की जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, फ्लोरा और फ्योना, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. इनमें से जो 10 हैं, दे आर बिकम द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व. कौन कौन से हैं? सुंदरवन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमीफाल, पचमही, अचकमार, अमारकंटक.
Clear that these included in the World Network Biosphere Reserve. The government also provide the financial and the technical assistance to many botanical gardens since 1992. इसके अलावा गवर्नमेंट मनी के रूप में और टेक्निकल असिस्टेंट नई नई टेक्निक्स के बारे में नॉलेज देती है टू सेट अप द बोटेनिकल गार्डन्स. प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. और जो भी स्पीसीज़ या वेजिटेशन या एनिमल जो भी स्पीसीज़ अभी एंडेंजर्ड है, खतरे में है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से प्रोजेक्ट, उनकी डेवलपमेंट के लिए अलग से नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रियानो एटसेट्रा. Government also established 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries, geological gardens for look after the natural heritage means flora and fauna of India. इसके अलावा it is our duty also to conserve these natural vegetation and wildlife because every insects or everything whatever we found on the earth is important for us. अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें इनको भी सर्वाइव रखना ही पड़ेगा, इनकी भी लुक आफ्टर करनी पड़ेगी. All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. हमें इनकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा. It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an end. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जो हम इसका ओवर यूज़ या अंधाधुंध इनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनको कम से कम करें और अपनी नीड्स को इतना ना बढ़ाएं कि हमें इनका एक्सप्लॉयटेशन करना पड़े. क्लियर दैट. तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए हमें इनकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हम इनको लुक आफ्टर कर सके, इनकी केयर कर सके. क्लियर दैट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर नेचुरल vegetation and wildlife. Thank you for watching the video.